السلام علیکم، کیا چال آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ اچھا جی، ریڈی ہو گئے ہم مجلس پہ جانے کے لیے. تو ابھی نا باہر نا مجھے بلا رہے ہیں، ابھی چلتے ہیں باہر. پاپا ویٹ کر رہے ہیں. کام واسطے جانا پڑ گیا. چلو پارکنگ وغیرہ لگا دی ہے. ابھی ادھر چلتے ہیں ادھر اندر. دیا گیا، حج کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا. لیکن یہاں پر جب لفظ آیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو کہا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور سجدہ کر رہا ہے، جو جانتا ہی نہ ہو کہ اللہ کا اختیار کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، سجدہ کر رہا ہے. جو پیغمبر کو معصوم ہی نہ مانتا ہو اور محمد رسول اللہ کہتے وہ سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور یہ بھی پیغمبر کے جانشینوں نے. اور آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہو رہا تھا. یہ طرح سلامت رہے. آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا. یعنی جو دور جاہلیت عرب کا تھا اس میں بھی اس معاشرے میں، اس معاشرے کے رہنے والوں میں ان کے کہیں ان کے نظام نافذ میں کوئی امام نہیں تھا. میں نے بڑا احتیاط سے جملہ کہا. جو دور جاہلیت مکے میں گزرا عرب کا، تو ان کو بھی امامت، لفظ امامت سے آشنائی نہیں تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی لفظ امام بھی ہوتا ہے اور اس کو پہچانے بغیر انسان مر جائے تو جاہل مرتا ہے. تو دور جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا، تو جو دور جاہلیت والا ہے وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. تو کہا کہ اب جب تم اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو تم جاہل مر گئے، تمہاری موت جاہلیت ہی ہو گئی. یعنی تم جاہل و اجہل رہے، تم نے کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے. یہ رہے سلامت رہے. دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے. انہوں نے کہا صاحب کعبے میں ہم نے دیکھا آج سے 50، 100، 200، 300، 400 برس پہلے، یا پیغمبر کے 80 برس بعد اور ان کے بھی 80 برس بعد اور ان کے بھی 80 برس بعد اور ان کے بھی 80 برس بعد. تو ہم نے دیکھا کہ معاشرہ اسلامی میں کعبے میں 4 مسلح، اتنی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ ادھر کعبے میں مسلح بنے ہوئے تھے، 4 مسلح تھے اور 4 اماموں کے 4 مسلح. 4 اماموں کے 4 مسلح اور ادھر 12 کا 1 مسلح. وہ 4 انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ 12 اس کے بنائے ہوئے. وہ 4 غیر معصوم، یہ 12 معصوم. توجہ فرما رہے ہیں آپ، توجہ فرما رہے ہیں. تو اب کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ جو لفظ امام ہے وہ کہاں منطبق ہو رہا ہے. میں کہاں سے دلیل آپ کے حوالے کروں، کہاں سے دلیل آپ کے حوالے کروں. تو
गुफ्तगू मैंने शुरू की कि अल्लाह ने एक लफ्ज कुरान में रखा है और वो लफ्ज है हक। वो लफ्ज है हक। अब आप देखते चले जाइए ये लफ्ज हक कहां कहां आ रहा है। आज मुझे अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल करना है, मुझे हुक्म दिया गया है कि अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल करना है, लिहाजा बड़ी तेजी से आपके साथ मुत्तसिल होता हुआ आगे बढ़ूंगा। अब देखना यह है कि लफ्ज हक कहां कहां आ रहा है। पहली बार तो जब आ गया कि जब पैगंबर ने बुत तोड़े और पैगंबर कहते जाते थे जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था, यानी बातिल के मुकद्दर में मिटना है और हक के मुकद्दर में जागते रहना है। हक के मुकद्दर में ताज़गी है, हक के मुकद्दर में नफूज है। कह दिया जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अब कहा जब वो तोड़ रहे थे, पैगंबर के हाथ में असा है और उस असा से वो असा बुतों की गर्दन में डाल डाल कर खींच रहे थे और खींचते खींचते कह रहे थे जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया, बातिल चला गया, हक आ गया, बातिल चला गया। भाई बात कब समझ में आई कि बातिल चला गया? बातिल गया यानी बुत निकल गए, बातिल चला गया यानी काबे से बुत निकल गए। अब ये तो तलाश करो कि काबे में हक आया कब? अब ये तो तलाश करो कि काबे में हक आया कब? हक आ गया और बातिल चला गया, हक आ गया और बातिल चला गया। इसीलिए सुनने की बात है आपकी, इसीलिए पैगंबर ने 3 बुत जो बड़े बड़े थे उनके ये कहा या अली आप मेरे काने पे बुलंद हो जाइए, आप मेरे काने पे बुलंद हो जाइए। क्यों? मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। नहीं, पैगंबर बताना चाहते थे कि जैसे हजरत इब्राहीम के लिए जब इब्राहीम काबे की दीवारें बुलंद कर रहे थे तो अल्लाह ने कहा इस पत्थर पे खड़े हो जाओ और पत्थर को बहुत बुलंद होता गया और इब्राहिम उसके ऊपर बुलंद होते गए और काबे की दीवारें बुलंद कर दी। तो क्या पैगंबर के लिए कोई पत्थर नहीं आ सकता था? और पैगंबर उस पत्थर पे बुलंद होते जाते और काबे में रखे हुए 3 भोले बुतों की गर्दन उतार देते। नहीं, ये इंतजाम कुदरत था। कुदरत चाहती थी कि जबान से सुन रहे हो कि जाअल हक, अब जरा पैगंबर के कांधे पे हक को देख लो। अब जरा समझ फरमाई आपने? कहां से बताएं कि हालात क्या हैं, हालात क्या हैं। ये हुसैन ने इस तरीके से बातें आगे बढ़ाई और करबला का आगाज किया। लेकिन जब हुसैन आज यानी 2 मुहर्रम को करबला में दाखिल हुए, आज हुसैन करबला में दाखिल हुए, ये है दिन 2 मुहर्रम का कि जब हुसैन सरजमीन करबला में दाखिल हुए और दाखिल हुए तो जैसे ही उस हद में दाखिल हुए कि जो हद जमीन करबला कहलाती है, हुसैन की सवारी आगे नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने से इनकार करती है। हुसैन ने दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, बार बार घोड़े बदलते गए, कोई सवारी भी आगे ना बढ़ी। तो एक बार हुसैन ने उतर के मट्टी को अपने हाथ में लिया, मट्टी को सूंघा, सूंघने के बाद मट्टी को जमीन पर डालकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी ये कहा ही था कि जिब्राइल नाज़िल हुए और कहा है रसूल अल्लाह के बेटे, अल्लाह ने आपको तोहफे दुरूद व सलाम भेजा है और अल्लाह ये कह रहा है कि हुसैन से कह दो कि घराने के लोग लगे, सवारियों की शान, लिबास की शान, सब चले। चलते चलते करीब पहुंचे तो एक बार हैरान हो गए कि कोई और नहीं, सबने कहा ये तो हमारा इमाम हुसैन है, ये तो फातिमा का लख्त जिगर हुसैन है, ये तो अली का बेटा हुसैन है, ये तो रसूल का नवाजा हुसैन है। एक बार सब आगे बढ़े, सबने कदम बोसी की, सबने कदम बोसी की। कहा ऐ बनी असद वालों, तुम में कोई ऐसा है जो इस जमीन का नाम बताए? किसी ने
आगे बढ़ के कहा, इस जमीन का नाम है गाजरिया, क्या इसके अलावा कोई और नाम है? एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा, इसे शक्ल फुरात भी कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम भी है? किसी ने आगे बढ़ के कहा, इसे नए नवा कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और? अब ये सारे नाम हुसैन लिखवा रहे, हुसैन को सब पता है, लेकिन हुसैन तारीख में लिखवा रहे। क्या कोई और नाम भी है? किसी ने कहा इसे नासिरिया भी कहते हैं, हाजिरिया भी कहते हैं, नए नवा भी कहते हैं, शक्ल फुरात भी कहते हैं। सारे नाम हुसैन ने लिखवाए। हुसैन ने कहा क्या कोई और नाम भी है? अब सब चुप हो गए। भीड़ को चीरता हुआ एक बुजुर्ग आए, और वो ना आए तो तुम ही झेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी हमारे तुर्बतों पे डाल देना। अरे मैं कहूँगा हुसैन सबको वसीयत कर दी। अरे सहना भी सुन रही है, सकीना भी सुन रही है। मजलिस वगैरह खत्म हो गई, यहाँ पे खड़े हुए हैं सारे। ओए कोई फोटो नहीं, कैसे हो? हैं? ऊंची आवाज ना बोल, ठीक हूँ। सही से बोल, बोले बोले। जुलझना देखा है मेरे वासम भाई, मैंने जुलझना देखा है। चलिए थोड़ा नहीं उतरना है, चलो चलिए। चल तू चल, मैंने कितने चला है क्या समझ में? चल चल, अब मामे ने पूछ ला, मामू ने यार कोड करा देने चैनल ठीक है। जज पहुँच के मिलते हैं आपको। अच्छा जी, गाड़ी हमारी केली खड़ी हुई है। हाँ जी, तप्पी तो होनी है मैंने लगता। बैठो, ये गरम है, गरम नहीं है, सानू लगेगी। चलते हैं अभी घर पहुंच के मिलते हैं आपको। हम आ गए हैं घर, तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।